बच्चों, I hope you are studying well. Okay, so today we are going to start accessory sex glands or accessory male reproductive glands, or we can say simply male accessory glands. Okay, so accessory sex glands कौन कौन सी होती हैं बता रखी है ना, कौन कौन सी होती है बच्चों? यस, दीज आर फर्स्ट वन सेमिनल वेसिकल्स, ओके, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरी कौन सी हो सकती है बच्चों? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड बताई थी आपको मैंने, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल vesicles. Okay, so you can differentiate. Okay, bulbourethral gland, or other name of this gland is Cowper's gland. Okay, is that clear? Three types of glands are present and they are responsible for various secretions. Okay, and they most of them form the liquid portion of the semen. Okay, getting my point? Most of the liquid form of semen is contributed by the accessory sex gland or male accessory glands. Okay बच्चों, so one by one we will discuss. So first we are going to take seminal vesicle. Seminal vesicles. तो seminal vesicles are convoluted pouch like structures. Okay, these are pouch like structures and they are lying posterior to the base of urinary bladder and anterior to the rectum. Is that clear? Okay, and they secrete, because secretion is important, and they are two in number. कितनी? How many? Number 2 means one pair, that is one pair. Glands are present, okay, posterior to the base of urinary bladder and anterior to the rectum. Secretion, क्या secrete करेंगी ये? Secretion क्या हो सकता है इसका? They secrete alkaline, okay, they secrete alkaline viscous fluid that contains fructose and clotting proteins that are different from those in blood. Okay, getting my point? Along with this, they are also responsible for secretion of prostaglandins. Getting? तो यहाँ लिख लें, अगर समझ नहीं आ रहा है तो फर्स्ट थिंग इज alkaline viscous fluid, okay, that contains fructose. फ्रक्टोज क्या है भाई? यस, अ मोनोसैकेराइड शुगर. ओके, और क्या सिक्रीट करेंगे? सेकंड सिक्रीशन होगा इनका क्लॉटिंग प्रोटीन्स. क्लॉटिंग प्रोटीन्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ब्लड. जो ब्लड में प्रोटीन्स होंगे उनसे डिफरेंट होंगी. और क्या सिक्रीट करने वाले हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स. Prostaglandins. Okay बच्चों, so these three are different in their secretion. What is the use of alkaline nature of seminal fluid? It helps to neutralize the acidic environment of the male urethra and female reproductive tract. Otherwise they would kill the sperms, okay, or they can inactivate the sperms. So the acidic environment of male urethra and female reproductive tract is neutralized by the alkaline secretion. Okay बच्चों, then clotting proteins. What is the function of clotting proteins? These help
in semen coagulation after ejaculation. Okay, means clotting proteins help semen coagulate after ejaculation. यानी कि ejaculation के बाद में जो semen coagulate होगा वो किसकी वजह से हो रहा है? Presence of clotting proteins. And prostaglandins, what is the use of prostaglandins? हाँ, अब दिखाई दे रहा है. What is the use of prostaglandins? Prostaglandins contribute to sperm mobility and viability and may stimulate smooth muscles contraction within the female reproductive tract. It means कि they are responsible for sperm mobility and viability. Only this thing is enough. Getting my point? Now we are moving to second gland, and the gland is prostate. Prostate gland. Okay, prostate gland, what is important about the prostate gland? That it is single. Okay, single gland यानी कि एक ही प्रेजेंट होगी, जबकि सेमिनल वेसिकल्स 2. ओके, दोनों साइड में रेक्टम के एंटीरियर, रेक्टम के एंटीरियर साइड में दोनों साइड में एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जो किस में ओपन होगी, जो अपना सिक्रीशन किस में डालेगी, वास डिफरेंस में. ओके, ये भी वास डिफरेंस में डालेगी? नहीं, ये वास डिफरेंस में नहीं डालेगी. ओके, तो सिंगल होगी. देन शेप कैसी होगी इसकी? शेप इज डोनट लाइक. डोनट शेप. ओके, एंड साइज, साइज क्या होने वाला है इसका बच्चों? साइज गोल्फ बॉल. देखिए ना, गोल्फ बॉल. सिक्रीशन क्या करने वाली है एक्चुअली बच्चों? आफ्टर बर्थ एंड टिल प्यूबर्टी prostate gland slowly increases in size. Okay, and it expand rapidly until about age of 30. Okay, 30 की एज तक फिर ये अपना साइज एक्सपेंड करेगी. देन आफ्टर क्या होने वाला है कि 45 की एज तक इसका साइज एज इट इज़ रहेगा, और एनलार्ज अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. सिक्रीशंस क्या रहेंगे इसके? सिक्रीशन क्या सिक्रीट करेगी? मिल्की, स्लाइटली एसिडिक, मिल्की एंड एसिडिक फ्लूइड. स्लाइटली एसिडिक, कितना स्लाइटली है? 6.5 pH. ओके, एंड कंटेन सेवरल सब्सटेंसेस लाइक सिट्रिक एसिड. अगर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है बच्चों तो कुछ याद आ रहा है 11th क्लास का? सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ओके, तो यहाँ भी अगर सिट्रिक एसिड आ रहा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि क्रैब साइकिल होगी, और क्रैब साइकिल के थ्रू स्पर्म क्या करेंगे? ATP जनरेट कर लेंगे. ओके, और 25% सीमेन का जो वॉल्यूम है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड. और ये सेमिनल वेसिकल कितना परसेंट करने वाली है भाई? 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन. अब तीसरी ग्लैंड पर आते हैं. दैट थर्ड ग्लैंड इज, थर्ड क्लास नहीं, थर्ड ग्लैंड. ओके, तीसरे वाली कौन सी ग्लैंड है भाई? यहाँ दिखाई देगा. सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड इज, यस, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स. यानी कि ये भी क्या है? 1 पेयर. ओके, 1 पेयर है. साइज कैसा रहेगा इनका? साइज कितना रहेगा? पीस. ओके, एंड करने क्या वाली है? सिक्रीट क्या करेंगी ये? They secrete an alkaline fluid into urethra. Okay, they secrete alkaline fluid into urethra. Alkaline
fluid into urethra. Is that clear? अब एल्केलाइन है तो फिर से वही प्रोसेसिंग का काम होगा कि दे प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड फ्रॉम यूरिन इन द यूरिथ्रा. यूरिन की वजह से यूरिथ्रा में एसिडिक मीडियम बना है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है भाई? इसके एल्कलाइन मीडियम का. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है ना बात? ओके, क्लियर. अब इन तीनों के सिक्रीशन को मिलाकर के क्या कहेंगे बच्चों? इट इज नोन एज semen. Okay, so what is semen? It is a mixture of sperm and seminal fluid. It is the mixture of sperms and seminal fluid. Okay, getting? And it is the secretion of vulvourethral gland as well as the prostate gland. ejaculation, एक बार के ejaculation में कितना सीमेन सीक्रेट रिलीज होने वाला है बच्चों? 2.5 to 5 मिलीलीटर ओके ml in one ejaculation. ओके, pH कैसा रहेगा? एल्केलाइन कितना रहेगा भाई? 7.2 to 7.7. ओके, कभी कभी क्या होता है कि सीमेन के साथ में ब्लड भी आ जाता है. ओके, सीमेन इजैकुलेट हो रहा है तो उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या करेंगे हम? हीमोस्पर्मिया. ओके, हीमोस्पर्मिया. और ये जनरली होता क्यों है कि जो आपकी सेमिनल वेसाइकल्स हैं उनकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ओके, सो नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक हो जाएगा. ओके, अब सीमेन का फंक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए कि सीधी सी बात है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, protects from the hostile acidic environment of male urethra and the female's vagina. Is that clear? ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, चीज़ों को समझ लो और कॉपी में नोट्स बना लो. टिल देन बाय बाय.